The artwork about clip art and creating logos uses the similar type of tools. All of them uses the similar type of tools, that is vector tools, which is given by. सर आवाज नहीं आ रही। ओ, आवाज़ नहीं आ रही है? जस्ट अ मिनट, अभी आई थिंक आ रही होगी, राइट? अभी क्लियर आ रही है सजन? यस सर अब आ रही है। हेलो। या अभी यस आ सर रही अब होगी आ ना? रही है। ओके ओके। All right. So basically, vector designs, vector tools are in Photoshop generally uses comprises of four smaller group of tools. One is pen tool, another is your text tool, another is directions tool, which is used to move these vectors, and the last one will be the shape tools, which I had already shown you about that in earlier classes. But in order to create a clip art or create a logo, you need to create a specific type of document, because generally when we were creating posters and when we were creating leaflets or other type of you know designs, generally they went for either it could be a poster or a digital print, whatever it may be. Basically it takes about A4 size to A3 size of paper, right? When you create something on on an A4 size, just if you are creating a poster or if you are creating a digital print, it will take you to create that in A4 size. But when we talk about clip art, or either it would be a logo, a character, which is going to going to be in the mobile, or either into your television screen, either in a game as well, you need to create your document in square box, right? In square box. Why? Basically because when you create everything inside of a square box, you can easily resize it into some different resolution, and it will not lose that much of data, which image data, basically that was it will not lose that much of image data, which it will lose basically in A4 or any other disproportionate measurement. So we need our square document, or a canvas needs to be square, so that means our width and height has to be similar. Now as you can see, I have given my width and height a similar measurement of 1024. Why 1024? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Okay, yeah, I haven't shared it. Why nobody's there? Okay, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर फोटोशॉप की नहीं दिख रही पर। हाँ, वो तो it would be ओके। there, right? मैंने यस अभी सर यही अब। दिखा है. Let me यस just सर। message in group. All right. So now as you can see, my width and my height is 1024. So why 1024? Basically, late Abhishek, late. Okay, so 1024 and 1024 is my width size, width and height size. That means the document which will be created will be square. So 1024 इसलिए क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है, ये रेजोल्यूशन हमारा जो एच डी रेजोल्यूशन होता है,
उनके लिए कोई भी आप क्रिएट करते हैं उनके लिए होता है। तो अगर हम इससे कम रेजोल्यूशन में जाएंगे तो डेफिनेटली और शार्प होगी इमेज, लेकिन क्वालिटी लूज नहीं होगी। और इससे बड़ा रेजोल्यूशन भी जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 तक जाएंगे, जो कि ये मैनेज कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट रेजोल्यूशन ऑफ 1024, ओके, जिसमें जो कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सिमिलर होंगी एंड पिक्सल्स में होगा। और इसका और कोई चेंजेस हमको करने नहीं है, विल क्रिएट directly and we will get something like this, a square canvas. All right, a square canvas is there. Now, as I had earlier told you that there are only 4 tools as a group, only 4 tools which is used to create vector graphics, and that is pen tool, text tool, path selection tools, or direction selection tool, or ellipse tool, basically the shape tools. Okay, so let's just get on with our process of creating a character or a logo, character. If we are creating a logo sort of character, we will use this character as a logo as well. So before starting, you need some references. Okay, always go for references, which I am currently finding that all of our batch students are basically not following references. आप लोग रेफरेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आर्टवर्क जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही नज़र आ रहा है, एक लिमिटेड आर्टवर्क नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उसमें कुछ नया डाल लें, क्योंकि हमारे हम जो आर्टवर्क बनाते हैं, जो कि ज़ीरो से आर्टवर्क बनाते हैं, बेसिकली वो कहाँ से बनता है, वो हमारे दिमाग से बनता है। वो दिमाग में हमारे जब तक एक रेफरेंस गैलरी नहीं होगी, जब तक दिमाग में हमारे इतने सारे विजुअल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी मेमोरी में, तब तक हम कुछ नया नहीं ड्रॉ कर सकते। मैं बहुत कुछ नया ड्रॉ कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ विजुअल गैलरी ऑफ अबाउट 12 ईयर्स। तो मेरे पास 12-15 साल की विजुअल गैलरी है, जो कि मैंने डिफरेंट शेप्स कैरेक्टर्स बनाते हुए अपने दिमाग में फीड की हुई है। बट करेंटली जो भी स्टार्ट करता है दैट पर्सन डजेंट हैव अ विजुअल गैलरी। सो इसलिए जब भी वो ड्रॉ करता है तो उसकी जितना उसके पास रेफरेंस गैलरी होती है माइंड में, जितनी डिज़ाइंस होते हैं, बस वो उतने ही डिज़ाइंस में सीमित हो जाता है। फिर उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके आगे और क्या ऐड क्या करें, और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ये रुक रहा है। कई बार डिज़ाइंस जो हैं वो उतने अच्छे नहीं बन पाते। रीज़न है क्योंकि हम लोग इनफ रेफरेंस या इनफ रिसर्च वर्क नहीं करते। अब जैसे हमें एक लोगो बनाना है या हमें एक क्या बोलते कैरेक्टर के लिए क्लिप आर्ट बनानी है फोटोशॉप में, तो हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ, बट अगर हमारे पास रेफरेंस गैलरी, विजुअल गैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस हम नेट से डाउनलोड करेंगे। सो एज यू कैन सी, मैंने इसको किया, ये कांट कंप्लीट बोल रहा है बिकॉज दैट्स अ वेब पी फॉर्मेट। तो वेब पी फॉर्मेट को ओपन करने का तरीका होता है, राइट क्लिक करके उसको आप MS पेंट में ओपन विथ कीजिए, राइट, और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए जहाँ पे आपको सेव करना है। सो आई हैड ऑलरेडी डन दैट, और सेव करते समय उसका फॉर्मेट जो है वो आप JPEG रख दीजिए, जिसके कारण से आपको इजी पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रेफरेंस गैलरी में इसको सेव किया है PNG फॉर्मेट में, और ओपन करेंगे एंड सी, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, विच आई एम गोइंग टू यूज राइट टू ड्रॉ। अब ये स्केचेस से थ्रू ड्रॉ किया गया है पेन्स के ऊपर, हालांकि ये ग्राफिक्स के लिए अलग से नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल डिजिटल ग्राफिक्स, बट दिस इज अ स्केच दैट कैन बी यूज्ड। सो Control+A Control+C कॉपी, पेस्ट इट इन योर कैनवास सो दैट आप इसको स्क्वायर में बना सकें। एंड कोई एक लेंगे, सो आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग दिस वन, ओके, मैं इसको क्रिएट करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लेयर एंड आई एम गोना टेक माय पेन टूल। नाउ पेन टूल इज very much a
tool that is used to trace the objects. ठीक है, ये आपकी जो भी आप स्केच होते हैं उनको ट्रेसिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इसकी एक खासियत है कि इसका जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं पेन टूल की मदद से, यू कैन एडिट दैट पर्टिकुलर ड्राइंग बिकॉज पेन टूल एक्चुअली क्रिएट्स पाथ। एज यू कैन सी देयर इज पाथ ओवर हियर, right? So pen tool creates path. So now as you can see in the option bar, there are a lot of options over there in the pen tool. One of this is combine shapes, subtract, front, intersect. This is basically how your pen tool is gonna behave with your shapes or with whatever path it is creating, how they are going to behave with each other. That is what it actually resembles. So what we are going to do, we are going to use them in order to create some of these designs, but before that I am actually changing this to combine shapes because I wanted to join lot of shapes over here. Okay, so these are operations, basically operations that will give you a little bit command over the shapes. So now let's just start with drawing. So pen tool gives you a connector. When you click, you will get one point, and then you can click another point and you will automatically get an edge. So there is, as I had already told you, there are three properties in pen tool. When you press enter, it will applied, or it will deselected, it will be deleted. So whenever you want to disappear all the paths what you have created, you just have to press enter by selecting that. Now what I am gonna do, I am going to first fade these lines because these lines are really crisp and dark. So I'm just gonna reduce the opacity from my layer panel of the particular layer. Then I'm gonna select the layer 2, the layer which I had created right above my references, and I'm gonna lock my reference. So I'll just have to select that and click on this simple lock icon in order to lock that. Now I'm gonna go for the layer 2 and I'm gonna use P as a alphabet in order to access my pen tool. By default, pen tool will give you one point. This point is actually called anchor node. So this is an anchor node or an anchor point. Then I'm gonna click over here. Now you will see there are two anchor points, and both of them anchor points are basically connected with your edge. This is called an edge. So I'm gonna select this, click over here, select this, click over here, select this, click over here, select that. Now as you can see, both of these shapes are actually connected. All of them are connected, and now what I can do, basically this is a path which we had created, the structure path. Okay, so what we can do with a vector shape, it has three properties: fill, stroke and path. So we had achieved path. Now we wanted to fill stroke. We wanted to fill stroke over it. So what we are going to do, we are going to select a black color for our stroke, right click, stroke path, and go to, don't go for a pencil one, click on the tool. You will get a small stroke path dialog box where first option is tool. This tool is basically how your this path is gonna look like. There are multiple options are also there which you can use regarding your innovations, and all of them work separately because let's just say if there is a pencil, then every design is being created like a pencil. If it is a brush tool, then everything every settings of brush tool is applied to this particular path. If you are taking an eraser, so everything will be erased on this path, whichever whichever is there. So it will erase all that. So what I am going to do, I am going to go for a brush tool. I am going to select my brush tool,
first cancel it, select my brush tool, and as you can see, my brush tool is pretty big. So what I have to do, I have to smaller it down, put down the size a bit, right? And you can use square brackets left side, so that you can, get a smaller one. So I have just small this down to 1, and then see, so I will give a little bit broader in width, and then I'm gonna go for P, right click over my path, stroke path, and I'm gonna go and select brush. Okay, and press OK. So see, all the shape actually, filled with black color stroke, right? And you can see it is filled in the stroke. Now if you wanted to, smooth all these areas, if you wanted to smoothen up these areas, what will you do? First of all, go into the pen tool over here in your toolbar. There are multiple type of tools there, don't worry about them. You just have to select convert point tool, select it, and you will able to get a different type of tool which looks like an arrow or an angle, right? And you can click and drag in order to get these bezier handles, which will help you to create or turn this particular shape into a softer ones. You just have to click and drag, and it will give you an arch. And both of the arch are basically, conducted by your bezier knots. These are bezier handles basically, so they can be connected through bezier handles. See, I've just got a smoother one. Then I'm gonna go and go to pen tool, P, and right click. Now as you can see, my edges are pretty soft now. So similarly, I'm going to do that with another one. So let's just create, give it like that, स्पेस बार से पैन करेंगे. You can pan around the by using space bar, and then you can cover it. Backspace in order to undo your last creation. If you had created something, in order to undo that, you just have to press backspace. Now what I'm going to do, I'm going to press right click, stroke path. Again, I'm gonna give that, but before that I need to smoothen these up. So as you can see, now the selection has been removed from my path. So how I can select this path? In order to select this path, I have to go to these arrow tools which are given, path selection and direct selection tool. Okay, so path selection tool actually, both of them has a different property. When you select the black arrow, path selection, it will help you to move the whole selection, whole path, right? And when you go for a direct selection, you can actually move a single anchor point. So that is very handy. So let's just go to our pen tool. After selecting this path, go for a pen tool, go for convert point tool, and then give it a simple curve. सर स्क्रीन हैंग हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है. Okay, let me just stop my screen again, and let me just अभी बराबर है, स्क्रीन दिख रही है अभी? ये सर
Okay, so now I'm clicking and dragging, give it a very small sort of soft design. Okay, then go for pen tool, P, right click, stroke path, apply. Now as you can see, it is applied, and you can see it actually gives an overlapping line over here. Press enter in order to remove this path with, सर हाँ हाँ, सर स्क्रीन फिर से हैंग हो गई है। स्क्रीन फिर से हैंग हो गई है। Now can you able to see the screen along with the Photoshop? अभी आ रहा है? Okay, so I hope everybody can listen my voice, or you can see the screen. Now तो जो हमने यहाँ create किया है, that actually an intersecting line is created over here, so we have to erase it. To erase, go for E, eraser tool, click over here, and ब्रश साइज थोड़ा सा इसका छोटा करेंगे, and as you can see it is not visible because caps lock on था, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और शिफ्ट दबा के इधर ले जाएंगे, शिफ्ट दबा के इधर इधर। अब देखिए ये बीच से चॉप ऑफ हो गया है। फिर से एक और क्रिएट करेंगे। आई होप अभी दिख रही होगी स्क्रीन। सर बट लैग हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन लैग हो रही है। Go to pen tool, convert point tool, give it a small curve over here. Right click, stroke path, stroke, remove that, and we will be getting something like this. Now I'm gonna take another layer right beneath my layer 2, so this will be your line art 01, and this will be your line art 02, क्योंकि हमको इसमें डेप्थ क्रिएट करनी है, तो जितनी भी डेप्थ सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं। नाउ अगर हमें कुछ कर्व क्रिएट करने हैं रैंडमली डायरेक्टली, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू गो टू योर कन्वर्ट पॉइंट टूल एंड टर्न इट अप इनटू अ कर्व। यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग इन ऑर्डर टू गेट दैट कर्व। हम डायरेक्टली क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। ओके, सो वी हैड डायरेक्टली क्लिक एंड ड्रैग ओवर हियर। इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, select it and give it a stroke path. It's okay. Erase this,
we have some sort of depth over here as well. Then go into the top layer and create a triangle just like this, and then go for a convert point tool, click and drag in order to get something like that. Now if you wanted to put this in accurate curve, you can directly, by going into the convert point tool, go directly to your Bezier handle and then drag them inside, so that it will break the particular Bezier handle, and both the handles is going to behave independently. Okay, so I'm gonna select this point tool again. I'm gonna give a stroke path. Stroke path. Okay, now I wanted this these lines. सर स्क्रीन हैंग हो गई है फिर से. स्क्रीन हैंग हो रही है बार बार, ऐसा क्यों? एक बार आप Yes, लोग, sir. एक बार मैं आउट होके वापस इन होता हूँ. अभी दिख रहा है? Yes sir. I've just restarted it, so let's see. Go into the conversion point and okay, then select that. राइट, नाउ नीचे की डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम नीचे के शेप को सेलेक्ट करेंगे. यहाँ से हम क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे. यू कैन सेलेक्ट दैट एंड विल गो फॉर कन्वर्ट पॉइंट टूल. कि आप देख रहे हो कि ये कर्व जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा था, तो इसलिए हमने उसको सेलेक्ट किया. Now create the bottom part. So now we have created this particular line art. Okay, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंट्रोल ई यानी कि मर्ज कर देते हैं. अब हम इसमें कलर वैल्यूज पुट करेंगे. कलर वैल्यूज पुट करने के लिए वी नीड अनदर लेयर विच इज कॉल्ड कलर लेयर एंड पुट इट राइट बीनीथ योर वेक्टर. ठीक है, आप डायरेक्टली ऊपर की लाइन आर्ट लेयर पे कलर डाल सकते हैं, बट ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये कलरिंग का इजी और अच्छा तरीका है. तो इसमें क्या करेंगे, आप मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करेंगे. फ्रॉम हियर गो टू दी मैजिक वॉन्ड टूल, और इसमें फिर आप क्या करेंगे, इस शेप को बेसिकली इसके अंदर में जो स्पेस है इस पे क्लिक करेंगे. सो एज यू कैन सी अंदर का सब कुछ सेलेक्ट हो गया है.
राइट, मैंने इन सारे शेप्स को सेलेक्ट कर लिया। गो टू सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड, एक्सपैंड बाय 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स के द्वारा इसको एक्सपेंड कीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। और फिर इसके बाद इसमें आप कलर लेयर में जाइए और कोई भी कलर अप्लाई कर दीजिए। ऑल्ट बैक स्पेस। नाउ अब देखेंगे तो आपके डिज़ाइन में कलर फिल हो जाएगा। मैं इनसाइड कलर जो है वो रेड कलर देना चाहता हूँ। नाउ देख रहे हैं वो थोड़ा सा एरिया पार कर रहा है, तो 3 पिक्सल्स के बजाय 2 पिक्सल्स एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम कलर दे देंगे रेडिश। देन ये जो बाकी के शेड्स हैं ये एक्चुअली में डार्कर शेड एरिया कहलाएगा। तो इन जगहों के लिए आप आई ड्रॉपर से वही कलर उठाइए और उस कलर को अपने कलर पिकर में जाके, सियान कलर उठाइए, उसको कलर पिकर में जाके डाउन कर दीजिए हल्का सा, इसको डाउन कर दीजिए, ओके। एंड देन गो टू लाइन आर्ट एंड सेलेक्ट इनसाइड बाय प्रेसिंग शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करें। गो टू सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपैंड, गो टू 2 पिक्सल्स एक्सपैंड एंड गो टू कलर। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन जो हमने लिया है तो उसको ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दीजिए, कंट्रोल डी, एंड यू कैन सी कि हल्का सा शेड्स क्रिएट हो रहा है। नाउ जब हम पूरे कलर को फिलअप कर दें, फिर इसके बाद फिर से हम थोड़ा सा आईज की ओर जाएंगे एंड वी आर गोना एक्सपेंड द आईज, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड by 2 pixels and give them yellow color. Again go for this portion, अब we cannot fill lot of areas over here, बहुत पतला है, बहुत छोटी जगह है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हम फिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पेन टूल लेंगे, कलर वाली लेयर पे जाएंगे और पेन टूल से यहाँ का सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे मल्टीपल शेप्स चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे कंबाइन शेप्स में ऐड करके रखूँगा, ताकि जब भी मैं बनाऊँ तो एक कंप्लीटली अलग शेप ना बने, ठीक है। इसके लिए तो मैंने दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर लिया है, दोनों को सेलेक्ट नहीं किया है, अभी एक ही सेलेक्टेड है। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए मुझे पाथ सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, ब्लैक एरो, शॉर्टकट है इसका ए, और अगर एक ए दबाने से वाइट एरो आ रहा होगा तो शिफ्ट ए दबाइएगा। अब हम इन जगहों को फिलअप कर देंगे थोड़े ब्राइटर येलो कलर से। अब इस बार हमने जो शेप बनाया है वो पूरा क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज्ड पाथ जब हो जाता है, कोई भी शेप अगर क्लोज्ड पाथ में बनता है तो उसके अंदर कलर फिल किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे फिल पाथ पे क्लिक करूँगा और डायरेक्टली फोरग्राउंड यानी ये वाला कलर, बैकग्राउंड यानी पीछे वाला कलर,
तो फोरग्राउंड में मैं क्या बोलते हैं सारी ऑप्शन वैसे ही रखूँगा एंड आई विल जस्ट गो एंड फिल एंड सी मेरे शेप में कलर now select सेलेक्ट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अरेंजमेंट है, तो हम वाइट एरो जो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। गो टू पेन टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इतना कि जगह पूरी घेरी रहे एंड गो टू फिल, ओके। अब थोड़ा सा इधर हमको क्या बोलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ एक ऐसा ग्राफ दे रहे हैं जिसका यूसेज से एक कर्व सा क्रिएट होगा। इसको भी थोड़ा सा हम डल कर देते हैं और स्ट्रोक पाथ ओके, ताकि एक थोड़ा सा सेंस ऑफ डेप्थ आए। नाउ इसके बाद ये कलर लेयर थी, ये फ्लैट कलर लेयर थी, ठीक है। इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी नीडिंग अ शेडो लेयर जो कि और इसमें डेप्थ क्रिएट करेगी। नाउ शेडो लेयर क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक नई लेयर लें और हमारी शेडो का कलर जो होगा वो कैसा रहेगा। अगर हम इसी कलर को ब्लैक कलर की शेडो लेयर देना चाहें तो ब्लैक कलर की दे सकते हैं, या इन्हीं कलर्स की शेडो लेयर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा जो राइट पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया हमने, वी आर गोना सेलेक्ट दिस कलर, इसको थोड़ा सा डल करेंगे एंड वी गोना फिल स्ट्रोक पाथ, तो हमारे पास एक शेडो लेयर आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्योंकि रेड में शेडो बनेगी तो डेफिनेट सी बात है कि इसको हम थोड़ा सा मूव करके पास ले जाएंगे, इतनी बड़ी शेडो लेयर्स नहीं देनी है। पेन टूल, राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके। सी थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए
राइट, तो कैरेक्टर्स में थोड़ी सी डेप्थ नज़र आएगी. यहाँ पे भी थोड़ी सी शेडोज आएंगी, सो सेलेक्ट दैट, कलर थोड़ा सा डल, एंड देन फिल पाथ. Similarly over here as well. एंड अगर हमें थोड़ी सी हाइलाइट्स क्रिएट करनी है, राइट, अगर हाइलाइट्स क्रिएट करनी है तो हम फिर क्या करेंगे, विल गो फॉर दिस टाइम हम लोग वाइट कलर फिल करेंगे जो कि हाईलाइट के तौर पे उसके ऊपर रहेगा. इसके लिए एक और नई लेयर ले लेते हैं जिसको हम लोग हाइलाइट्स बोलेंगे. आप डायरेक्टली वाइट कलर भी ले सकते हो in order to give your अच्छा, पाथ को रिमूव करने के लिए एंटर तो दबाते हैं, लेकिन आपको पेन टूल में होना ज़रूरी है, तभी वो पाथ रिमूव होगा. Fill path. Now so we had created this whole कैरेक्टर, और इसमें अगर हमें कुछ रैंडम लाइन क्रिएट करनी है. नाउ जो हमने लाइन क्रिएट की है ये यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स थे, सब तरफ एक ही प्रकार की लाइंस गई हैं. बट अगर मुझे लेट्स जस्ट से कुछ रैंडम लाइंस क्रिएट करनी है जो कि जिसमें प्रेशर ज़्यादा हो, प्रेशर कम हो, इस तरीके की लाइंस अगर क्रिएट करनी है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली क्रिएट अ न्यू लेयर. ठीक है, एक नई लेयर लेंगे और हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे थोड़ा सा स्केची लुक देने के लिए. यहाँ पे ब्लैक कलर हम फिल कर लेंगे और राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू गिव सिमुलेट ब्रश प्रेशर. ब्रश का प्रेशर जो है उसको सिमुलेट करेंगे ताकि जो भी हम क्रिएट करेंगे वो अलग अलग उसमें नज़र आएगा. अलग स्ट्रोक में नज़र आएगा. तो आई विल प्रेस ओके एंड यू विल बी सीइंग, सी एक हल्का सा स्ट्रोक नज़र आ रहा है. ब्रश को थोड़ा बड़ा करेंगे सो दैट यू गाइस कैन सी. इसको स्ट्रोक करेंगे, सिमुलेट ब्रश प्रेशर ऑन रखेंगे एंड सी एक स्केची सा स्ट्रोक यहाँ पे रहेगा. सो हम इसको सेलेक्ट करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके थोड़ा सा इसमें अपने कैरेक्टर में थोड़ा सा एज दे देते हैं. राइट, एंड वी कैन ऐड
n number of strokes as well over here, so I'm gonna put a stroke over here. Now if I do this, so ये भी कॉपी होगा. तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन लूँगा इसका, select the whole shape, control C, control V, यहाँ से कॉपी करेंगे तीनों को, और इसको फ्लिप कर देंगे. और ऐसी बहुत सारे स्ट्रोक्स हम दे सकते हैं. जैसे ब्रश में जाएंगे और ब्रश में जाके हम लोग यहाँ पे ब्रश का जो शेप है उसको चेंज करेंगे. तो ब्रश का शेप के बारे में तो हम लोग आगे और बात करेंगे ही, बट मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ब्रश के मल्टीपल शेप्स आपको यहाँ मिलते हैं. तो अगर ड्राई मीडिया ब्रश में जाएंगे और यहाँ से आप किसी एक प्रकार का ब्रश उठाते हैं, लेट मी जस्ट सी, कुछ अलग अलग टाइप के ब्रशेज़ आपको यहाँ मिलते हैं. जैसे मैंने ये चेकर पैटर्न उठाया, अगर आप इसको पेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेंट होगा. अब आप क्या कीजिए, नई लेयर ले लीजिए एंड लेट्स जस्ट से कि हम आँखों में यहाँ से यहाँ तक कुछ फिल करेंगे. सो राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ओके, एंड यू कैन सी कि आँखों में वो वाले जो प्लस वाले साइंस थे वो फिल हो गए. ठीक है, तो नॉट इन, और वी कैन गो ऑन एंड सेलेक्ट these ones as well. तो इसमें फिर क्या होगा, ये बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन देगा. तो अगर फिल करेंगे तो फिर पैटर्न में जाके आपको फिल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो वहाँ पे फिल होगा. ठीक है, सो वी आर नॉट गोना डू दैट. बेसिकली मैं यहाँ पे, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो मेरा स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट ब्रश प्रेशर और इस तरीके का कुछ रखेंगे. इसको मैं लोगोस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ. सो मैं इसके लिए कुछ एक स्टिकर जैसा मैंने क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि इसमें से बहुत डस्ट उड़ रही है या यू नो कुछ इसको कलर लेयर के नीचे रख देंगे. राइट, एंड नाउ सेलेक्ट द होल थिंग, गिव इट अ ग्रुप, रोबोट ग्रुप बना लेंगे इसको. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ शेप राइट बीनीथ इट. इसके पीछे में एक लोगो के जैसा शेप देना है इसको. तो एलिप्स बनाएंगे, ड्रैग करेंगे. ठीक है, और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी शेप देना है, यानी कि हमको ऐसा शेप देना है जो कि क्या बोलते सारी डिज़ाइंस को शो भी करे. सो वी हैव टू चेंज इट्स कलर टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ सायन. सायन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ग्रीन एंड ब्लू का. तो इट कुड बी मैजेंटा. राइट, मैजेंटा जो है वो अच्छा कॉन्ट्रास्ट देगा और सारे डिज़ाइन को भी क्रिएट करेगा. अब मुझे चाहिए है कि इसके अंदर पे मैं क्या बोलते एक कटआउट दूं शेप को. ठीक है, लेकिन शेप कट नहीं होना चाहिए, समझेंगे. शेप इरेज नहीं करना है मुझे बेसिकली एक ऐसा शेप देना है इसके बीच में जो कटआउट के फॉर्म में हो.
तो कटआउट के फॉर्म में शेप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पाथ ऑपरेशंस ऑप्शन मिलता है हमको प्रॉपर्टीज़ में, जब हम किसी भी शेप लेयर पे क्लिक करते हैं। जब भी कोई भी शेप लेयर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको पाथ का कटआउट मतलब पाथ ऑपरेशंस करके ऑप्शन मिलता है, जिसके यूज़ से आप दो पाथ को एक साथ जोड़ सकते हो, दो पाथ के बीच में कटआउट क्रिएट कर सकते हो, इंटरसेक्शन कर सकते हो, ऐसे 4 ऑप्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पाथ को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आई हैव टू गो पाथ सिलेक्शन, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पाथ। मैंने पाथ को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर में मैं एक और पाथ क्रिएट करूँगा, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दैट पाथ थ्रू दिस एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट के थ्रू हम ये पाथ को सेलेक्ट करेंगे और फिर एक शेप क्रिएट करेंगे। नाउ एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल लेयर्स देयर, राइट। तो हमें मल्टीपल लेयर्स नहीं चाहिए है, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। सी इन अवर ऑप्शन बार यू विल गेट अ न्यू लेयर ऑप्शन। इस ऑप्शन को न्यू लेयर से हटा के कंबाइन कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप करेंगे तो एज यू कैन सी बीच का हिस्सा गायब हो जाएगा, बाकी सारे हिस्से रहेंगे। सो व्हाट आई विल डू बेसिकली, मैं यहाँ पे इसको कंबाइन शेप्स में करके इसको क्लिक कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि मेरा शेप, मेरे को नई लेयर नहीं मिली और उसी के अंदर दो शेप बन गए हैं, ठीक है। अब प्रति शेप में अगर मुझे कोई दूसरा ऑपरेशन ऐड करना है, सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर शेप, सी, एंड आई विल गिव अ operation to it. See, path operation I have given it and now it is actually editable. I can edit it however I want. It's just a simple cutout. Right, so हमने क्या किया, एक रिंग अचीव कर ली। What? एक और बार। सर स्क्रीन हैंग हो गई। स्क्रीन फिर से हैंग हो गया। ऑल राइट, लेट मी जस्ट अभी दिख रही? यस सर। सर कोरल की, यस सर, ऑफ कोर्स कर देता हूँ सर, यस सर, ओके। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो शेप्स के बीच में पाथ ऑपरेशंस क्रिएट किए हैं, ठीक है। पाथ ऑपरेशन चलो मैं आप लोगों को फिर से एक और बार बता दूंगा, ठीक है। हम लोग इन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।